afternoon, everyone. I, Mrs. Sulakshana Bhatlavandi, welcome you all to this session on behalf of Electronics and Communication Engineering Department of YB Patil Polytechnic, Akurdi. Now, the results of 10th and 12th standard are declared. Some of the students have filled the Diploma Engineering admission form. Some of the students are in process, and still some of the students are a little bit confused while selecting the course. So students, we are here to guide you, to help you in this diploma admission process. So let us start. We all know about almost every field is occupied by electronics gadgets today. Without the knowledge of electronics, no mobile, no computer, or any electronic gadget or home appliance is built. So today, we will introduce a very important and a very vast field to you, and will give the information regarding our Electronics and Communication Engineering department. So our first speaker is our head of the department, Mrs. Manisha Vibhute. She has 27 years of teaching plus industrial experience. She is our institute admission coordinator also. In spite of being HOD and carrying a lot of responsibilities, she personally talks to the students and guides them in their difficulties. So I request Vibhute Madam to give the information about our Electronics and Communication Engineering department. Over to you, Madam. Okay, thank you, Madam Bhatlavandi Madam. Good afternoon to all. I am Mrs. M.V. Vibhute, working as a head of the Electronics and Communication department, and also I'm looking after YB Patil Polytechnic admissions. So on Monday itself, we have met. On first session of the webinar on Monday, we have given you information about the diploma course, yes, then its admission process. As you know, diploma course is AICTE and DT approved, right? And it is a course of 3 years. For every year, there are 2 semesters, right? So in detail, now we are going to tell you about the Electronics and Communication department and what else activity we are carrying out so as to enhance the skills of our students, right? So I will be presenting a screen to you, the presentation of our department. Yes, can you see the screen? Godbole madam, can you see the screen? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay, so let us start with our presentation. So our department, Electronics and Communication Engineering, yes, it's awarded excellent grade by from last 5 years. We are consistently doing the excellent grade we are getting by Excellent Academic Monitoring Committee of MSBT Mumbai. This MSBT Mumbai is an affiliating body. So with help, they appoint their external committee, and by considering few points like on basis of academics, then the activities, co-curricular and extracurricular activities, which we are doing at departmental level for our students, then our results and industry institute in the interaction. So based upon that, they grade us. So we are having consistently excellent grade. So this is our positive point. And now what we do, what else we do for our students, that I'll tell you. So as you know, so every day we read newspaper on even a few highlights you get on mobile, Google search if you do, right? So electronics, as you know, electronic instruments are compact in size. This is the advantage, and you can use them for automation, right? So automation, जहाँ पे भी देखो आप, इंडस्ट्री में देखो, घर पे देखो, है ना, सभी जगह automation है. So we are all in our day-to-day life, we are experiencing this. ये थे.
स्मार्ट होम, ये तो मालूम है आपको, स्मार्ट इंडस्ट्री भी मालूम है, जहाँ पे मशीन सारे ऑटोमेटिकली हो रहे रन, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग करते हैं हम, तो वो प्रोग्रामिंग पार्ट, कंट्रोलिंग पार्ट, ये सारा इसमें आता है, राइट। स्मार्ट वर्ल्ड, स्मार्ट सिटी है, मतलब जो भी आप सिटी के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है वो पूरा सब कंट्रोल हम कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन भी आप देख रहे हो, तो ऑनलाइन ये क्या है, स्मार्ट एजुकेशन है। इवन फॉर वी आर कंसर्निंग द डॉक्टर्स, उसको वीडियो भेजते है ना, हेल्थ केयर के जो डिफरेंट जो बैंड्स वगैरह ये करते हैं, ये यूज करते हैं, राइट। दोज आर व्हाट, दोज आर सारे जो सेंसर्स, उसमें जो सर्किट्स है, ये सारा किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो है ना, ये कम्स अंडर इंडस्ट्री। अभी जो हम कंट्रोलिंग पार्ट वगैरह बोल रहे हैं ना मैं, तो ये इंडस्ट्री 4.0 का है, दैट इज साइबर फिजिकल सिस्टम। ये जो फिजिकल सिस्टम हमें जो दिखाई देता है, इसको बोलते हैं फिजिकल सिस्टम, राइट। एंड दीज फिजिकल सिस्टम्स, मशीन्स, डिफरेंट सिस्टम्स, गैजेट्स, ये इंटरनेटली कनेक्टेड है, राइट। सो उसको बोलते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, राइट। सो कैन यू सी द हेडलाइंस, देखो, यंग एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड रोबोट्स, बॉट्स, ड्रोन्स, ये हमारे भी स्टूडेंट्स ये करते, तो आगे हम एक्टिविटीज में आपको दिखाएंगे, राइट। AI में है, इंडस्ट्री ऑटोमेशन में है, जहाँ पे भी देखो आप वहाँ पे ये चल रहा है। सो नो नन फील्ड इज लेफ्ट फॉर अस टू कवर, राइट। अभी जो ये इंडस्ट्री 4.0, आई 4.0 चल रहा है ना, तो इसकी वजह से ये बूम है, सारे जो स्टूडेंट्स है अपडेट करे नॉलेज। व्हाट यू हैव टू डू, ओनली यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज एंड बी इन ट्रैक विद द जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको नॉलेज अपडेट करना है, रेगुलरली काम करना है, राइट। अभी on basis of this I'll be explaining you what are the wide scope or career scope of our electronic students. मोबाइल अभी तो आपने देखा है 5G चल रहा है, आ रहा है, तो 5G मोबाइल के इसमें भी आपको चांसेस है। रिलायंस है, ये कभी ये रिक्रूटमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। टेलीकॉम है, ऑटोमेशन है, IT सेक्टर है, रोबोटिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से ऑटोमेटिव जो कार्स में हम कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अभी AI चल रहा है, तो इसी का बेस AI जो चल रहा है ना अभी, उसी का बेस ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसको जो सेंसर्स, जो कंट्रोलिंग सर्किट लगता है, so that is what we are studying here. Even after studying diploma, they can opt for go for a government service or private job कर सकते हो, or they can go for direct second year engineering, right? So this is what about the career scope. ये wide career scope है इसका, ये कोर्स का, ठीक है। एंड आगे अभी मैं बोल रही नाउ व्हाट वी डू, वी वांट टू टेल व्हाई वी हैव कॉल्ड यू टुडे, बिकॉज वी वांट टू टेल the parents and the students that what we do at departmental level so that we are getting excellent grade. तो ये जो हम कर रहे हैं ना, उसके बारे में हम आपको बताना है। इवन प्राइमरी इनिशियली आई विल बी गिविंग यू ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द करिकुलम। ये करिकुलम में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये कितना अभी चेंज हुआ है फ्रॉम 2017। ये न्यू स्किल ओरिएंटेड आई स्कीम हम बोलते हैं उसको, स्किल ओरिएंटेड कोर्स इज इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ये कोर्स डिजाइन किया है। सो सारा जो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैड आस्क्ड मी, तो ये क्या आप सिखाते हो, कौन से सब्जेक्ट लेते हो, उसका क्या फायदा होता है, हाँ, तो ये सारा वी आर गोइंग टू सी। सो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अभी आपको जैसा मालूम है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 60 स्टूडेंट्स का इंटेक है, तो 62 स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन, राइट। इसके प्लस ये TFWS भी रहता है, EWS भी है। सो टोटल ओवरऑल अगर देखेंगे तो 69 स्टूडेंट्स है, राइट। सो वी आर हैविंग हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट ऑफ देम हैव मेट आवर डिपार्टमेंट, कॉलेज में आके मिले हो, फॉर्म भरा है ना। तो आपको मालूम है हमारे फैकल्टी मेंबर्स, दे आर सो कोऑपरेटिव एंड दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड। इवन आवर laboratory assistants, they are helping the students, right? We are having
well equipped laboratories. You can see our students, they are working on the circuits, computer, जो भी उसको लगता है तो वो सारा students को हम knowledge देते हैं, they so that they become well experienced. Then अभी MSBT का curriculum के बारे में हम बोलेंगे. For first year, that is there are 2 semesters, first semester and second semester. In first semester, they will be learning apart from the basic subjects like English, you can see here, English hai, physics hai, chemistry hai, mathematics is there. So ये ICT just like MSCIT, तो basic आपको word जो MS Office, Word, Excel, ये सारा हमारे teachers आपको सिखाएंगे. Even engineering drawing, तो ड्राइंग का हमारे पटन शेट्टी सर है वो सिखाते हैं आपको. देन दी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप के अंदर अभी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए. सो बेसिक जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. देन डिटेल स्टडी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्या कहाँ पे यूज होते हैं, क्या कौन सा एप्लीकेशन है, ये सारा हम बताएंगे. देन इन सेमेस्टर 2 थोड़ा सा और डिटेलिंग होता है, ये मैथ्स M2 रहेगा. फिर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट इज देयर, सो एज टू नो द DC मोटर्स, द डिफरेंट AC मोटर, DC मोटर, जब बाकी के जो नेटवर्क है तो ये सारा कैसे वर्क होता है ये सर्किट्स. देन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज देयर. देन मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो यूज करते हैं हम वो है. अपार्ट फ्रॉम दिस even can you see there is C programming language which we have highlighted. So basic of the कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज C प्रोग्रामिंग है. अगर ये ऐसा बोलते हैं ये आएगा तो आपको सब आएगा, लैंग्वेज एनी लैंग्वेज यू कैन लर्न, राइट. सो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दिस इज टॉट. सो दिस इज द एडवांटेज. जस्ट लाइक कंप्यूटर स्टूडेंट्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को भी ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ये पूरा नॉलेज दिया जाता है, राइट. सो ये थ्योरी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, अगर आपने इफ यू आर वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री और इफ यू आपका खुद का ये स्टार्टअप है तो यू कैन स्टडी हाउ टू राइट एप्लीकेशन, लेटर्स, ये सारा बिजनेस कम्युनिकेशन में ये आता है. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ईयर. देन सेकेंड ईयर में और डिटेलिंग, अभी ये इंडस्ट्री 3.0 दैट इज व्हाट डिजिटलाइजेशन. तो ये सारा डिजिटलाइजेशन के बारे में यहाँ पे आता है. जो बेस है कंप्यूटर का, जो मेन हार्ट है तो ये है डिजिटल टेक्निक्स है. डिजिटल में इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज करते हैं, जो नेटवर्क अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का नेटवर्क है, आगे कंप्यूटर नेटवर्क का भी थर्ड ईयर में सब्जेक्ट है, वो भी मैं बताऊंगी आपको. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे सेंसर्स जो सिस्टम के लिए कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम सर्किट रहेगा तो वहाँ पे सेंसर्स वगैरह जो यूज करते हैं तो उसका जो कैसे होता है, वो कैसे सर्किट्स, उसके एप्लीकेशन फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, तो ये हम सिखाते हैं. वहाँ पे लेवल कंट्रोल करना है, फोर्स कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, फ्लो कंट्रोल करना है, ये सारा यहाँ पे आएगा. एंड अपार्ट आल्सो द कम्युनिकेशन, तो बेसिक ऑफ ऑल दोज ये जो एप्लीकेशंस मैंने बोले ना, तो यहाँ पे ये क्लियर होता है. एंड इन फोर्थ सेमेस्टर अभी इंडस्ट्री में जो ICs वगैरह है तो प्रैक्टिकली ये जो कंपोनेंट्स है एक IC के अंदर वो बिल्ट किए जाते हैं. तो ये यहाँ पे एक एम्पलीफायर है, उसको बोलते हैं हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो वो इसके बारे में डिफरेंट सर्किट्स आते हैं. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में LED, LCD आपको मालूम है, तो वो टेक्नोलॉजी डिटेल में, और इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लायंसेस है तो उसके बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको ऑर्डर कैसे करना है, क्या उसका सीखना है, तो ये सारा. अपार्ट फ्रॉम दिस अभी ये कंट्रोलर पार्ट भी है यहाँ पे, माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन. तो अभी माइक्रो कंट्रोलर, तो ये हमने माइक्रो कंट्रोलर का जो बेस है, मतलब दिस माइक्रो कंट्रोलर इज देयर इन CPU, जो कंप्यूटर का जो मेन हार्ट है ना CPU, तो उसके अंदर ये माइक्रो कंट्रोलर है. तो ये कैसे वर्क होता है, तो उसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारा हम बताते हैं. फिर जो पावर डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो पावर हाई पावर के जो सर्किट्स रहते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज ज़्यादा लगता है, तो उसके बारे में भी हम सिखाते हैं यहाँ पे. देन डिजिटल कम्युनिकेशन, जो अभी कम्युनिकेट
एंड टू मतलब एक एंड से दूसरे एंड को कम्युनिकेशन करना है, तो डिजिटल कैसे करना है, उसके कोडिंग कैसे करने हैं, ये सारा। तो ये सारा अभी आपको क्वेश्चन रहेगा, ये कैसे सीखा है। तो यहाँ पे एज यू सी हियर EDA टूल्स, दैट इज एजुकेशन डेवलपमेंट टूल्स वी आर यूजिंग। ऑफलाइन तो हमारे पास बहुत सारे डेमो सर्किट्स है, डेमो किट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन में भी हमने एजुकेशनल डेवलपमेंट जो डेवलप किट्स है, सिमुलेशन फॉर एग्जांपल मैटलैब है, साइलैब है, मल्टीसिम, ई सिम, प्रोटिस, ये प्रोफेशनल जो लोग यूज करते हैं ना, तो वो यूज करके हमने वो भी अपने स्टूडेंट्स को, वो सिलेबस में है एक्चुअली हमारे, तो वो देख बता के वो उनको पूरा ये कैसे वर्क होता है ये सारा हमने सीखा है, राइट। उसके बाद आया फाइनल ईयर। अभी ये थर्ड ईयर में अभी क्या है, PLC है, देखो कंट्रोल सिस्टम एंड PLC। तो ये जो कंट्रोलर है, राइट, इंडस्ट्री के लिए पर्पज के लिए यूज करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम है, उसी माइक्रो कंट्रोलर का ही आगे का पार्ट है। देन मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये 5G वगैरह जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है 1G से लेके 5G तक, बाकी सारा यहाँ पे सिखाएंगे। ऑल्सो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर देयर, मतलब अभी जो मैंने जैसा बोला एडवांस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ये आ गए। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ये हमने सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई भी इंडस्ट्री में जॉब मिलने दो, तो ये सारा है, PLC है, हाँ। तो ये सारा अलॉन्ग विद दैट ये सेकेंड 6th सेमेस्टर में उनको मैकेट्रॉनिक्स हम इलेक्टिव लेते हैं। तो वो इससे क्या होता है, मशीन रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रोलिंग है, उसके जो एक्चुएटर्स, सेंसर्स, ये कैसे वर्क होते हैं, रोबोटिक्स इसमें आता है, ये सारा हम यहाँ पे हम बताते हैं। इवन कंप्यूटर नेटवर्किंग, अभी मैंने बोला ना, ये कम्युनिकेशन रिलेटेड, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, अभी ये बहुत चल रहा है। तो नेटवर्किंग में भी बहुत जॉब ये मिल रहे हैं। तो नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा, तो ये बेस क्लियर होता है यहाँ पे। इमर्जिंग ट्रेंड्स में अभी आर्डिनो ये नया अभी सॉफ्टवेयर आया है, तो ये कैसे सॉफ्टवेयर वर्क होता है, ये कैसे ये रोबोटिक्स, डिफरेंट ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये सर्किट्स कैसे वर्क होते हैं, ये सारा यहाँ पे होता है। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन दिस करिकुलम ऐसे डिप्लोमा के लिए डेवलप किया है, सो दैट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट उनको करने पड़ते हैं, एंड फाइनल ईयर को एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, मतलब एक मेजर प्रोजेक्ट उनको करना पड़ता है, राइट। तो ये भी हम उनको गाइडलाइन देते हैं कैसे करना है, क्या करना है। एंड ऑल्सो इन दिस स्कीम, स्किल ओरिएंटेड स्कीम, ये VLSI एक सब्जेक्ट है, देखिए। तो ये आईसी के लिए कैसे वर्क होता है, ये VLSI टेक्नोलॉजी, हाँ, आईसी के लिए कैसे ये सर्किट कैसे डिजाइन किए जाते हैं, तो वो Xilinx करके एक सॉफ्टवेयर है, तो वो भी हम इसके अंदर सिखाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, मतलब हमें ऐसे ही कभी नहीं लगा कि ऑनलाइन है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली हमने क्या किया है, हर एक टीचर ने वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो वीडियोज है, हम जो सर्किट्स बनाते हैं प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे आके हमने वीडियोज शूट किए, एज वेल एज फॉर सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हमने उनके सामने वो सिमुलेशन वगैरह उनको भी सिखाया। हाँ, तो बाद में आपको मैडम आपको भातलवंडे मैडम विल इन्फॉर्म यू अबाउट द एक्टिविटीज, तो बच्चों ने कैसे करके दिखाया वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा हमने ये इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। So next point will be about the co-curricular and extracurricular activities. This information about these activities will be given by Bhatlavandi madam. So yes, over to you, Bhatlavandi madam. Thank you, madam. Okay, students, when you enter the E&C engineering department, which activities you have to perform, that we will discuss now. Along with different curricular activities, different co-curricular activities and extracurricular activities are there. First is industrial or
industrial training or in-plant training for students. This training, in-plant training, is mentioned in the curriculum of diploma engineering. In the iSTEAM curriculum of MSBT Diploma Engineering, industrial training is introduced for students. This is the good initiative taken by MSBT to improve industry institute interaction. Why it is important? Why this industry institute interaction is important? The reason behind this is, as the technology changes day by day, it is very important for students to update themselves with the growing world by developing the traits of industry culture among them, and also to make them familiar with the industry environment before they enter into the world of industry. By exposing and interacting with the real life industrial settings, students will appreciate and understand the actual working of an industry, best practices adopted in the industry. Different industrial skills like soft skills, life skills, and hands-on skills will be inculcated among the students. Soft skills, that is communication skill, presentation skills, etc. During training, the students communicate with the different authorities of industry. So they learn how to communicate in the industry with the different people. After completing the training, students write the training report and prepare the presentation to present their work in front of the external examiner. So they will understand how to write the reports of the project. Different life skills are developed, that is time management, safety measures, team building, innovation, etc. Different hands-on skills are also improved. Design, implementation, quality assurance aspects, etc. will be improved. Here you can see in-plant training, which is completed by the students in 2019-20. Here. Madam, I can't scroll the screen. Please, next slide. Next slide, please. Yes. Due to pandemic situation in last year, in 2021, the students could not go to the industry physically, but they have completed their industrial training online. Expert from the industry, they have guided our students in this industrial training of students. They prepared the presentation and written the projects, reports for that, and presented their work. Next thing. Now, with this curricular activities, different co-curricular activities are also there. In that, industrial visits and expert lectures are conducted. Here you can see the students are visited Pune Tectrol, which is located in MIDC Boosri. Here different types of switches and gauges. The students have studied all the equipments which are manufactured by the industry. And here in the second photograph, you can see the students have visited Pune PCMC water treatment plant. Here different control systems like PLC and SCADA used in different sections of water treatment plant. So they have observed all these systems.
Also, one more aspect is there for visiting this water treatment plant, that is to make the students aware about efficient use of water. So social aspect also there. हम वो भी सोचते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट तो है ही, लेकिन सोशल एस्पेक्ट भी हम ध्यान में रखते हैं, और उसके हिसाब से हम इंडस्ट्रियल विजिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. Next, the expert lectures, we invite different experts from the different industry and to guide the students. Next activity, that is workshops. We organize different workshops at our college, but due to pandemic, we have organized online workshops in this 2021. These are the glimpses of online workshops which we have conducted in 2021. And here you can see one of the alumni has conducted the workshop for the students, current students. So we take the help of alumni students also to guide our current students. Next activity. Yes, these are the glimpses of project lab work. Final year students can come here in the lab and complete their project work. We guide them, we provide all the facilities in the lab itself. These are the students from 1920 batch. The students worked over here and completed their project work. This is the capstone project work, final major project. In academic year 2021, we didn't stop. We guided the students to complete the project work online by using different simulation softwares. Students have designed the circuits and implemented the projects online and presented their work. Next activity, that is technical quiz and circuit design competition. We organize different competitions here for students. Students show their talent through all these activities. Here we have conducted circuit design competition and technical quiz in 1920 batch. But here in last year, we have organized online competitions also for the students. So these are the posters which are made by the students, and we have used these flyers for the social media also. We conduct all these activities. We have seen up till now the activities for the students, but we conduct the activities for faculties also. The trainings for the faculties, we organize online trainings also for the faculties. So this is the activity, that is training program conducted by our department on modern trends in wireless communication. With all these curricular and co-curricular activities, we organize different cultural, we celebrate all cultural days also, like traditional day, theme day, Ganpati festival. We celebrate all these events. Next slide. We celebrate Independence Day, Teachers Day also. So we develop the students in all respect. So only we want the students who are interested, who take the initiative in all these activities.
Now, next is achievements. We all feel proud to explain all these all the achievements of the department. Vibhuti madam will continue further to explain these achievements. Thank you, Bhatlande madam. So these are the academic excellent results. Our students show excellent results have shown in MSBT board exams. In summer 2020, you can see above 90% they have scored. Yes, above 90% they have scored in final year, second year, right, as well as third year, that is final year, second year, and first year students. They are also showing very good performance. And in current exam, last semester exam, which the results have come out. Now above, see the first from final year students, 95% he has scored. Then the first year student who was at the entry after SSC, she has scored only 70 to 72%, but now after taking admission, she has scored 90.14 in first year. So easily you can do it. Just you have to study, work hard as per the instructions, guidelines given by the teachers. In second year also, our result is 91% of the topper. So easily the students can do it. Then the achievements, our students also secured prizes in different competitions. These are the prizes from the project competition, which are held interdepartmental as well as in other colleges, state level competitions they have won. So they have secured prizes here. Then about the achievements in sports, as you can see, a student is a final winner in Kabaddi, a district level Kabaddi match. Also, in other photograph you can see he is a karate champion. Now he is running his own institute. Now, due to pandemic, last time only I had asked him what you are doing. So he is running his karate coaching classes online. So well they are doing. See, anything you can do. Just you have to do with discipline and well mannered. Whatever teachers are telling, ये obey करना है और काम करना है बस. तो कोई भी फील्ड में जा सकते हो. अभी ये देखो स्पोर्ट्स में ये करियर कर रहा है, कुछ भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है. तो ये अभी हो गया. Now CSR, apart from this, what we are doing for the society. अभी सोसाइटी के लिए every year we are conducting workshops. So all departments we are conducting workshops, free workshops for the school students. तो वहाँ पे हम जाके even counseling sessions we are conducting. So you can see this in second photograph, counseling sessions. Also our institute कैंपस लेवल पे भी हम हर एक कॉलेज नहीं है, दो स्टूडेंट्स जो आश्रम के हैं, हमारे पीछे बालग्राम आश्रम है, नचिकेत बालग्राम आश्रम, तो वहां से भी हमने अडॉप्ट किए हैं. So our institute has adopted 2 students from that Balagram ashram. So we visit them and even मतलब आपको बर्थडे रहेगा ये रहेगा तो हम वहाँ पे जाके उनके साथ भी शेयर करते हैं. So these are all activities we are doing. Counseling sessions, अभी MSBT along with MSBT मुंबई, तो इनके साथ भी हम काउंसलिंग एडमिशन के लिए सेशन, मतलब अभी जैसे हमने मंडे को ऑनलाइन सेशन लिया, तो वैसे ही अभी ऑफलाइन ये लास्ट टाइम हुआ था, लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द दिस MSBT साइट ये हुआ था. फिर उसके बाद डिफरेंट सबका लोकमत ये लोग एग्जीबिशन लेते, तो वहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट करते हैं. बाकी के जो स्टूडेंट्स को जो नहीं मालूम रहता है इनको पॉलिटेक्निक टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, तो ये सारा हम बताते हैं. इवन द स्कूल्स वेयर वी आर विजिटिंग, तो वहाँ पे टीचर्स दे आर आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द टेक्निकल एजुकेशन. तो वहाँ पे हम बोलते हैं उनको काउंसलिंग करते हैं. देन अभी कोविड की वजह से हमने जो ऑनलाइन टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ इनिशियली हाउ वी स्टार्टेड, तो उनके साथ हमने जैसे अभी मीटिंग लिया, उनको बताया अभी मतलब उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, तो उनके साथ पहले कम्युनिकेट किया एंड देन वी स्टार्टेड टीचिंग एंड लर्निंग ये प्रोसेस चालू किया. उनके टेस्ट छोटे छोटे टेस्ट लिए,
वीडियोस हमने बनाए, टीचर्स ने पीपीटी बनाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोस बनाए। तो अलग अलग गूगल क्लासरूम एक रहता है, तो वहाँ पे हमने सारे हमारे जो सब्जेक्ट हम जो टीच करते, तो बच्चों का अगर वो वहाँ पे अगर ऑनलाइन उस टाइम पे नहीं है अवेलेबल, तो वी आर अपलोडिंग इट ऑन गूगल क्लासरूम। इवन अभी अब नया सॉफ्टवेयर हमने कोल पोल करके लिया है, तो वहाँ पे भी हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को के साथ कम्युनिकेशन में रह सकते हैं। तो वो एक हमारे मैनेजमेंट के ने हमें वो भी सपोर्ट किया है। एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस शेयरिंग, मतलब हमारे जो पास आउट स्टूडेंट वो तो हमें हेल्प करते हैं। इवन आर रिलेटिव्स, अभी जैसे गोडबोले मैडम की बहन की लड़की अभी वो अमेरिका में, तो उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। शी हैव ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दे स्टडी ऑनलाइन और ऑफलाइन अलॉन्ग विद द मतलब ये पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे कैसे होता है, कैसे वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ये सारा हमने बच्चों के साथ शेयर किया हमारे। तो वो और मेरी बेटी है कनाडा में, तो वो उनके साथ उसने भी वो शेयर किया। शी इज लर्निंग ग्राफिक, शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो अलॉन्ग विद स्टडी हाउ शी इज डूइंग। तो ये पार्ट हमने एक्सपीरियंस शेयरिंग में इंटरनेशनल वेबिनार भी कंडक्टेड। ऑल्सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हमारे जो उन्होंने भी प्रेजेंट किया, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए थे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो वो जूनियर स्टूडेंट्स को भी उन्होंने प्रेजेंट करके बताया कि हाँ ऐसा करोगे। तो दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो इससे क्या होता है, नॉलेज भी बढ़ता है और आगे का राह भी मिलता है कि ये कैसे होगा, आगे कैसे हमें जाना है, क्या करना चाहिए। एंड ऑल्सो एज यू नो वी हैव कंडक्टेड रोबोटिक्स सेशंस फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ये बात भी है। Then about the ये competition, अभी last year if you remember समाधान competition was held by MHRD, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंपटीशन रखी थी। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड फ्रॉम दैट वन, ये जो आप देख रहे हैं ना प्रोजेक्ट IoT थर्मल क्राउड स्कैनर, तो ये इन्होंने लो कॉस्ट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना के ये इन्होंने ये आगे के राउंड तक गया था ये प्रोजेक्ट। तो ऐसे बच्चे करते हैं काम। एंड ऑल्सो जैसे अभी भातलौंडे मैडम ने आपको बोला है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का यहाँ पे एक पिक्चर हमने दिखाया। सो दिस इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री 4.0, तो इसलिए मैंने वो भी आपको बताना चाहा। सो बेस्ड ऑफ आवर अलुमनाई रवि कडली, सो ही हैड ये बैच 2009 का बैच का है, खुद का इंडस्ट्री है, लेकिन ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अस ऑल्सो, मतलब इसने रोज वो सेशन लेता था बच्चों का। एंड ही यूज्ड टू मतलब वो और उसके टीम, तो बेस्ड अपॉन PLC, SCADA, IoT, ये सारा इंफॉर्मेशन बच्चों को उसने ऑनलाइन लास्ट ईयर दिया था। अभी भी बच्चे अभी ITR का ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे होता है वैसा वो करते हैं। ये कंपलसरी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो इससे क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम थियरी प्रैक्टिकल स्किल्स भी उनके बढ़ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। So now we are feeling very proud to introduce you about our alumni. So this introduction will be given by our senior staff, Godbole madam. So over to you, Godbole madam. Thank you, Vibhuti madam. Good afternoon, everyone. I would like to present you our proud alumni. मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा मुकाम बना लिया है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, सागर तरलकर। सो इज पास आउट बैच इज 2005। तो देखिए 10-15 साल का ही सिर्फ डिफरेंस, ज्यादा नहीं लिया है, और लेटेस्ट भी हमने लिए है स्टूडेंट्स की कितना कुछ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो ही हैज गॉट 65% इन डिप्लोमा, फिर डिग्री भी किया उन्होंने, और फिर अभी जॉब है टाटा कम्युनिकेशन में, मैनेजर है वो इंटरनेशनल रोमिंग के। सैलरी है 10 लाख पर ईयर। ओके, और ये जो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके आप सॉफ्टवेयर में नहीं जा सकते, सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं। So he is the one of the example. Then this is the next example, that is Preetham Phalke. So Preetham Phalke pass out from 7-8 batch. He has got only 61%, but after diploma he gave exam of Mercedes Benz और उसमें वो सिलेक्ट हो गए। तो टेक्नीशियन, तभी वो डिप्लोमा ही थे, तो सिर्फ टेक्नीशियन के पोस्ट से उन्होंने चालू किया था, और वो आज डीलर इन हाउस ट्रेनर है।
और अभी 6 लाख का पैकेज ऑटोमोबाइल वाली कंपनी है। तो ऑटोमोबाइल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। ठीक है। So next he is the Ashok Kumar. So he was the topper from our college among the Maharashtra. So he has passed in 2011. फिर उन्होंने डिग्री तो किया नहीं पर बीसीए किया, एमबीए किया और अभी कैपजेमिनी इंडिया में पोजीशन मैनेजर है। और काम क्या करते हैं मैंने पूछा उनको, तो नेटवर्किंग मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्डवेयर पार्ट है, सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना, उसके वो मैनेजर है। तो जितने भी आप देखते हैं बैंकिंग कनेक्टेड है, सारे कंपनीज कनेक्टेड है, सब सारा वर्ल्ड ग्लोबली कनेक्टेड है एक दूसरे से। वो किस वजह से है कि सैटेलाइट और फिर सैटेलाइट से लोकल कम्युनिकेशन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे नेटवर्क कम्युनिकेशन वो खुद हैंडल करता है। कैपजेमिनी में अभी वो मैनेजर पोस्ट पे है और उसकी सैलरी 20 लाख है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स हर किसी इंडस्ट्री में जा सकता है। So our next example is Harshada Biche. So she is also passed out in 2009 with 61%. फिर उन्होंने बीई भी किया 67% से और अभी जॉब कर रही है टेक महिंद्रा में। सो टेक महिंद्रा एज यू नो इट इज ऑल्सो मैकेनिकल एज वेल एज सॉफ्टवेयर कंपनी, बोथ है। और अभी वो टेक्निकल ट्रेनर है और 7 लाख की सैलरी ले रही है। ओके, ये तो रिसेंट 2015 में उसने डिप्लोमा पास किया विथ 86%। ही इज ऑल्सो अ टॉपर, वन ऑफ आवर टॉपर। और फिर बीई भी किया 2020 में और अभी वो सॉफ्टवेयर कंपनी में है आईबीएम में। सो यू आर ऑल अवेयर ऑफ आईबीएम कितनी बड़ी कंपनी है, पूरा सॉफ्टवेयर हैंडल करती है, पूरे वर्ल्ड में आईबीएम कंपनी के ब्रांचेस है और उनके पैकेज है 10 लाख। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर कंपनी। नेक्स्ट है हमारा प्रियंका खुड़े। So she is 2016 पास आउट, डिप्लोमा में 85% थे और शाहू कॉलेज इंजीनियरिंग से उसने बीई भी किया और अभी वो कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के साथ है विद डेवलपर, पैकेज ऑफ अप्रोक्सीमेट 5 lakhs। वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी में है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा क्या होता है कि आपको हार्डवेयर भी आता है और सॉफ्टवेयर भी आता है, मैकेनिकल पार्ट भी आता है क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स भी रहता है, प्रोग्रामिंग भी आता है, असेंबली लैंग्वेज एज वेल एज जो भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस है जैसे सी है, C++ है, उसमें भी आपका नॉलेज बढ़ता है। नेक्स्ट इज आफ्टर प्रिया खुड़े, दिस इज संकेत गवाए, लास्ट ईयर पास आउट 2019, जस्ट 2 साल हो गए। तो 65% उसको उसने अचीव किए। वो हमारे कैंपस से ही, कैंपस ड्राइव जो चला हमारा YB पाटिल पॉलिटेक्निक का, उसमें ही सिलेक्ट हो गया KPIT कमिंस में, इंस्टेंटली ज्वाइन कर लिया उसने। और तब उसका पैकेज 2 लाख रुपीस था, पर जैसे जैसे उसके ईयर्स बढ़ते गए अभी आज 4 लाख का पैकेज है 2 साल में। और अभी उसको बीई करने के लिए पिछले साल परमिशन भी मिल गई, तो कंपनी के परमिशन के साथ अभी वो बीई भी परस्यू कर रहे हैं। मतलब ये भी एडवांटेज है डिप्लोमा का कि डिप्लोमा के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और अगर आपकी कंपनी परमिट करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या स्पॉन्सरशिप देती है, तो आप बीई भी साथ में कर सकते हैं, मतलब अर्न एंड लर्न हो सकता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर करते हो तो ये पॉसिबल है। सो दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल चंद्रकांत राजाराम हिराडे। सो उसने भी YBC डिप्लोमा पास आउट किया 2012 में, फिर बीटेक किया, पीजी डैक किया और अभी पहले कंपनी थी उसकी फुजित्सु बेंगलोर की और उसका स्टार्टिंग पैकेज था 3.5 लाख पर एनम। आफ्टर 3 इयर्स उसने स्विच कर लिया। तो फुजित्सु तो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी थी, फिर कॉलसॉफ्ट में आ गया तो एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब यू कैन स्विच ओवर बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। और अभी कितना है पैकेज, 10 लाख का पैकेज है वैमवेयर में। ओके, और अभी वर्किंग ऑन ऑडी जर्मनी असाइनमेंट और पैकेज है 12.6 पर एनम प्लस बोनस प्लस अदर इंसेंटिव। सो करंटली ही इज वर्किंग एज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। तो इतने सारे करियर हो सकते हैं। ओके, तो कितना एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो उसने खुद ही दिया है कि इतना सब मैंने किया है और पूरा बायोडाटा अपना दे दिया। मैं MNC में काम किया है, जापान बेस्ड, USA बेस्ड, जर्मनी बेस्ड,
और लैंग्वेजेस पाइथन में उसने यूज कर लिया है। और अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसने अपना ओपिनियन डाला है कि I have done 6-year technical. So what he is saying that as my personal experience, I have done 6-year technical education in electronics, but started career as a IT professional. तो ये फायदा होता है। तो देखो कितने हमारे बच्चों को जॉब मिलता है। ओके, कहाँ कहाँ मिल सकता है जॉब। ओके, तो आफ्टर कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वी हैव मेनी ऑप्शंस। IT, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेड जैसे कि एम्बेडेड है, VLSI है, सब जगह। और अगर गेट भी देते हैं, वो ये भी कहता है कि अगर इफ यू गिव गेट एग्जाम एंड अपियर फॉर हायर एजुकेशन, इट विल बी गुड स्कोर फॉर द PSU कंपनीज। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत अच्छे काम कर सकते हैं PSU कंपनीज में। ओके, तो कौन कौन से कंपनीज में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेक्शन होता है बच्चों का, जैसे कि अभी लिस्टेड है यहाँ पे, तोशिबा है, स्मिता एंटरप्राइजेस है, टाटा कम्युनिकेशन है। ओके, somebody is asking Yash Chandrasekhar, okay, how many percentage placement of your college? So maximum आप सिलेक्ट हो जाते हैं जितने भी, उतने सारे हम लोग प्लेस करते ही है। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि प्लेस हो जाए, पर बच्चे डिग्री भी करना चाहते हैं। मेनी स्टूडेंट्स वांट टू परस्यू द डिग्री, so percentage is almost 90%. That means those who are selected in that companies, they all go to the job, but some are there though they go for the higher education, जो ज्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं। पर अगर जॉब करते हो, मेरा ख्याल है कि हम लोग मैक्सिमम 100% प्लेसमेंट दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। पर अगर डिग्री को जाना चाहते हो तो फिर वो प्लेसमेंट आप कोशिश करो कि प्लेसमेंट के साथ आप कंपनी परमिशन दे दे आपको कि जॉब करने के लिए। ओके, देन TCS है, कैपजेमिनी है, बजाज ऑटो है, यू कैन सी हियर कितने सारे कंपनीज, मर्सिडीज बेंज है, DXC टेक्नोलॉजीज है, IBM है, SCL टेक्नोलॉजीज है, कॉग्निजेंट है, बायजूस, फ्लेक्सीट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज, फिलिप्स, रिलायंस जियो, विप्रो है, सीरम है। सीरम में भी, सीरम तो आप सबको अभी तो मालूम है कोविशील्ड की वजह से, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स को जॉब मिलता है। भारत फोर्ज इज अ मैकेनिकल कंपनी। ओके, एडोर वेल्डिंग इज ऑल्सो मैकेनिकल कंपनी, SKF इज अ मैकेनिकल कंपनी, पर उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जॉब्स मिलते हैं। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें आफ्टर डिप्लोमा यू कैन हैव अ जॉब। अगर जॉब नहीं करने तो डिग्री करके भी आप जॉब कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में भी कर सकते हैं, मैकेनिकल में कर सकते हैं, फार्मा में कर सकते हैं। वर्ल्ड इज ओपन टू यू आफ्टर डूइंग द डिप्लोमा। ओके, so this is the short information given to you about what electronic engineer can do। क्या क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा। एक स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या क्या कर सकता है, ये सब एग्जांपल्स, जो रियल एग्जांपल्स है, अभी हमारे स्टूडेंट है अलुमिनाई, उनके एग्जांपल्स अभी हमने दे दिए। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज गॉट आइडिया एंड बेनिफिट्स ऑफ डूइंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आई रिक्वेस्ट नाउ अगेन बातलवंडे मैडम टू कंप्लीट द सेशन। ओवर टू बातलवंडे मैडम, थैंक यू। Thank you, madam, for giving the information about our proud alumni of our department. Before that, I would like to add, if Vibhute madam is adding something to that Yash Chandrasekhar's question, that how many percent placement is of your college. We'd like to have some little question answer session. If anybody is having any other question, please ask. Our HOD will answer. No, our alumni is there with us. Let them speak first. In their busy schedule, they are sharing some time with us. So yes, Sanket, are you there? Sanket? Yes, ma'am, I'm present. Please turn on your video, Sanket. Can you turn on video and Yeah. few words? Just hold on, ma'am. Okay. Yes, Sanket, I request you to tell your experience. Am I visible to you, ma'am? Yes. Not clear.
Adjust your camera, Sanket. Yeah, now I think Yes. it's good. Okay, what can I share, ma'am? Because I'm not prepared now. Now you Nice. share your experience. We're proud of you, Sanket. Thank you so much. Okay, hello everyone. Myself Sanket, and I am the student of YV Patil Polytechnic College, and I am passed out in 2019 batch. In that year, I was placed in two companies. First one is Minda Industries, and second one is KPIT Technology. And right now, I am working with KPIT Technology as a software test engineer. And there are lots of benefits to join this college. We can say that we can shape our career as we want. This much, ma'am, I can speak now. Thank you. Okay. We give you your number to the students who want to interact with you. Yeah, fine, no problem. If anybody have any questions regarding placement, they can ask. Yes, you can turn on, students and parents, you can turn on mic. If you are having any question, please ask. Excuse me, madam. Rohan. Yes, Yes, Rohan. if I do my diploma in ENTC, then I can do my BTech in AI, or is necessary to do a degree in ENTC only? No, there is wide scope. Just we have seen, I told you, you can do their degree after doing diploma in ENTC. You can do degree in IT, computer, electronics, instrumentation, AI. All those branches are open. Even robotics, Robotics, yes, Electronics. mechatronics. electronics, everywhere. You can get a direct second year admission to these degree courses. Degree courses. Yes, ma'am. Thank you. Even you can select electrical engineering also. Electrical engineering. This is Yes. also option open for you. Yes, any question from parent side? एक क्वेश्चन किसी को पूछना है एडमिशन के बारे में, अगर कोई रिपीट करना है तो वो भी बोलिए, हम फिर से एक बार आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी. Admission process. In short, shall I tell you the admission steps? Yes, anybody want to know the admission process? डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस अभी रजिस्ट्रेशन सारे बहुत सारे जन ने किया है. डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं है, कभी भी सीबीएसई पैटर्न के लिए प्रिंसिपल का साइन और स्टैम्प रहेगा तो वो अपलोड कर सकते हैं हम. Yes, here she is again asking, madam, ma'am, after diploma, can we do work or we should study further? अभी हाँ, ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन अभी वर्क है ना वो इम्पोर्टेंट है ना, काम मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा. सो साइमल्टेनियसली यू कैन इवन स्टडी. कंपनी इवन दे आर स्पॉन्सरिंग. केपीआईटी में अभी ये संकेत का मैडम मेरे ख्याल से संकेत बोलेगा तो और भी अच्छा रहेगा उसके लिए. संकेत, answer it. Yeah, ma'am. I would like to answer this question. Actually, ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, अगर हम वर्क एक्सपीरियंस ले तो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अभी मैं भी इंटरनली मैंने डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया है यूपीआईटी कॉलेज में, लेकिन फिर भी कॉलेज वालों ने हमें ये प्रेफर किया है, जो रेगुलर स्टूडेंट है और जो जॉब करके भी डिग्री कर रहे हैं उनको भी यही रेफर किया है कि आप मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेने के लिए रेफर किया उन्होंने. So yes, you can do diploma also, after diploma job also, as well as degree also. Yes. Like Sanket is doing. Yes, any question? Yes, Shraddha Kare is there. She has joined. Okay, Shraddha. So let us I request you, Shraddha, to share your experience. Yeah. So yeah, this is Shraddha, and currently I'm working with Entity Data. It's a Japanese software company. So yeah, after my 10th, basically, I was sure that I don't want to do medical, but even looking at the financial condition initially, I decided to go for diploma.
And later when I entered in engineering, I realized the benefits which I got through diploma. So basically with diploma, we get the theoretical as well as practical knowledge, which is very important. And when we go into engineering, then it's very easy for us to implement there. So in engineering, basically whatever I observed is the practical implementation of whatever I learned in diploma. So from diploma, we get very detailed knowledge. That is what is the key thing to implement anything. So I think that's the main importance of diploma. And the best part is if you want to get settled, looking at your family background earlier. So after diploma, it's like you have one qualification and you get jobs easily. So that is important. And other than that, if you talk specifically about ENTC, so I feel it useful because here we get to know about electronic components, their programming, and the actual work on. That is what is key benefit of ENTC. With that's why I feel ENTC is good to go for, because you get to know electronic parts, coding, and their working as well. So you get end-to-end thing that is useful in this IoT and embedded related things. Yeah, that's why like with ENTC, you can go for any specialization in any direction. That's why I feel ENTC diploma is important. Yeah. Thank you, Shraddha, for joining us today. Yeah, yeah. Any student wants to ask her some doubts, then ask. And one additional point is like in DY campus, we have like Japanese language classes also started. So doing the additional foreign language is also very useful, and I have experience of it because I did my Japanese language proficiency. I started in my engineering college, and it's very useful for me to differentiate in a crowd. So that thing is there in like DY campus. Thank you once again, Shraddha. No, thank you. Sorry for joining late. No, 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 it's not. you all. Yes, any other alumni who joined? Yes, any questions? We can take a few questions from. Yes. Yes, any questions? I hope, yes, you have decided your mind to take admission in electronics only. Yes, madam. Okay. So students, I hope you all got the information about electronics and communication engineering and our department. Students, do you realize parents, teachers, and students are the three entities having the same goal, which is success of students. That is possible only if these three entities go hand in hand. When students become successful, then their parents as well as teachers will be proud of them. We are always there to help you, to guide you. So thank you all of you for joining today's webinar. I would like to thank our principal, Mr. A.S. Pondekar. He always motivates us to conduct various activities. त्याच्यानंतर जे सतत प्रयत्न करत असतात की डिपार्टमेंट नेहमी एक्सलंट कॅटेगरीमध्ये यावं आणि स्टुडंट्सचाच नेहमी विचार करत असतात की स्टुडंटला सक्सेस कसं मिळेल. So I would like to thank all the staff members of E&C Engineering Department. Once again, thank you to all the students and parents for joining this session. Thank you all of you.
And I conclude the session is over today. Yeah. Thank you, everyone. If anybody is having any doubt, you can come personally. We will guide you. We will help you. Okay. Thank you once again. Yeah, if required, ma'am, please share my contact. Even I'll Yes, help yes, students. of course. Yeah. Of course. Shraddha. Thank you. Thank you very much. Yes, thank you all of you.